Good morning, students. Let's try to understand the sequential circuits. So as we all know that sequential circuits have feedback, and as compared to combinational circuits, they provide the feature of storing the information. So here's the overview of the content, that we know that circuits need memory to store immediate data. For that we have developed the sequential circuits. Now what device actually serves this purpose is flip-flop, and the most basic type of flip-flop is latch. We'll be just understanding the difference between flip-flop and latch, and as it is shown that latches are made from the logic gates. So till now we have been studying various types of logic gates, and we all are aware about the functioning and the truth table of respective logic gates, and they will be used here to understand the functioning of the flip-flops and latches. Here you can see that there is a block diagram that represents how you are having the combination of flip-flops in order to attain the sequential circuits. So till now we have been studying combinational circuits, in which we know that there is no memory element, it cannot store any amount of memory. So what we added flip-flops or latches in order to get that feature of storing the data. So flip-flop is a device which is capable of storing a single bit at a time, and it keeps the information until the next input is applied. So as we say that in sequential circuits, a part of output is fed back to the input. So here you can see this is the combination circuit. We have given an additional device to this, that is flip-flop. Now both of them process the information. This is the present state. Now the present state output is given back to the combination circuit. It processes it with the inputs and then gives the output of next state. Fine. And this, as we know that flip-flops work only with the clock. So this is the timing signal that governs the function of flip-flop. Here you can see the basic clock that is representing a single pulse. This is the rising edge, this is the falling edge of the clock, and this is the level. Now we'll be studying that how flip-flops and latches differ. As we know that in flip-flops they are clock triggered, they are synchronized signals, they are synchronized devices which operate only with the functioning of clock. So as the clock is applied, the flip-flops start working and they are in synchronous. And in latches there is no application of clock, so the latch changes its output whenever the input is applied to the system. And here that's why we know that the latches are level triggered, that whenever the input of the input changes from 0 to 1 or 1 to 0, its level changes and accordingly it is triggered and it functions. But in flip-flops, as they are synchronous circuits, they are clock driven, so they perform their action on the leading or falling edge based on the designing of the flip-flop, how it is designed. It is designed to follow the leading edge or the falling edge of the clock. So now we will be studying how the latches and flip-flops perform their action. First of all, we will start with the SR latch, that is designed using NOR gates. So I hope अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि लैच और फ्लिप-फ्लॉप में क्या डिफरेंस है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये लैच है, लैच में यहाँ कोई क्लॉक इम्प्लाइड नहीं है. ठीक है, तो ये तब काम करेगी जब भी आप इसका इनपुट चेंज करोगे. और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्लिप-फ्लॉप वो इसी की फंक्शनिंग सेम रिपीट करता है, बस वो सिंक्रोनाइज होता है किसकी हेल्प से, क्लॉक की हेल्प से. तो जब हमें अलग अलग डिवाइसेस को एक साथ ऑपरेट करवाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्लिप-फ्लॉप को यूज़ करते हैं और उन सबको एक ही क्लॉक से सिंक्रोनाइज कर देते हैं.
ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम SR लैच जो नॉर से हमने इम्प्लीमेंट की है, नॉर गेट से, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे क्या है, नॉर गेट से इम्प्लीमेंटेड SR लैच का डायग्राम है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है इसकी ट्रुथ टेबल कि ये कैसे काम करेगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने एक नॉर गेट ये लिया है, एक नॉर गेट ये लिया है, और इसके अलावा हमने इनका आउटपुट दोनों रिस्पेक्टिव नॉर गेट्स में दिया है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कपल्ड सिस्टम। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला है कि ये SR लैच कैसे बनी हुई है, क्रॉस कपल्ड नॉर गेट से, क्योंकि ये दोनों नॉर गेट्स हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस फंक्शंस। चलिए हम ये लेते हैं कि हमारे पास Q में 0 है, ओके, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ डॉट और अ 0, एंड Q बार में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इस कंडीशन के साथ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनपुट दिया 0 R पे भी और S पे भी। ये हमारा करंट सिनेरियो है। अब इसके बाद आप देखो, ये 0 का इनपुट, इसका दूसरा इनपुट क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब ये 0 और 0, अगर आपको नॉर गेट की टेबल याद हो तो 0 0 होने पे क्या होता था, आउटपुट 0, सॉरी 0 0 जब इनपुट होता है हमारे किसी नॉर गेट का तो आउटपुट क्या होता है, 1। अब यहाँ पे 1 पहले ही था और अभी भी आउटपुट 1 आया। अब ये 1 हमारा फीडबैक कहाँ होगा, इस जगह पे हमारे दूसरे नॉर गेट में। तो यहाँ हमारा इनपुट क्या आया, 1। अब यहाँ देखिए हमारे इनपुट पे क्या क्या है, 0 और 1। तो नॉर गेट में जब 0 और 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है, 0। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी जो Q और Q बार में था, हमने जब S और R को 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट हमारा सेम ही रहा, फाइन। अगर हम दूसरा केस कंसीडर करें कि हमारे Q में 1 है और Q बार में क्या है, 0। ठीक है, तो अब 1 और 0 के केस में अगर हमने R पे 0 दिया है और S पे भी 0 दिया है तो हमारी कैसे फंक्शनिंग होगी। अब आप देखिए ये 1 यहाँ गया तो 1 और 0 का आउटपुट क्या आएगा, नॉर गेट में फिर से 0 ही आएगा, हमारा पहले भी 0 था। इसका मतलब जो पहले वैल्यू थी वो वैल्यू सेम रही। इसके बाद यही 0 जब यहाँ जाएगा तो क्या हुआ, अब इस गेट में हमारे क्या इनपुट वैल्यूज हो गई, 0 और 0। नॉर गेट में अब दोनों वैल्यू 0 होने पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1। पहले भी 1 था, इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट सेम रहा। यही हमारा ट्रुथ टेबल में दिख रहा है कि जब भी हमारे S और R पे 0 0 अप्लाई किए जाते हैं तो Q और Q बार में जो भी वैल्यू रहती है वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब द latch remains in the same state on the application of input 0 0 for R and S। ठीक है, अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। केस 2 क्या है, हमने S पे 0 दिया और R पे 1 दिया। अब हम मानते हैं कि हमारा Q पे क्या है, 1, और Q बार पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का कॉम्प्लीमेंट है तो 0। अब आप यहाँ देखिए जब हमने R पे 1 दिया और S पे 0 दिया, यहाँ पे इनपुट क्या गया, 0। ठीक है, अब ये वाला 0 हमारा यहाँ गया इस नॉर गेट में। इस नॉर गेट के इनपुट चेक करिए, 1 और 0। नॉर गेट में 1 और 0 इनपुट होने पे आउटपुट क्या हो जाता है, 0। यहाँ पहले क्या था, 1, ये चेंज होके क्या बन गया, 0। इसे हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, 0।
जो पहले 1 था वो हमारा 0 हो गया। अब ये 0 हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है, ये 0 यहाँ जाएगा। तो अब इस नॉर गेट को इनपुट क्या क्या मिले, 0 और 0। नॉर गेट पे 0 0 इनपुट का आउटपुट क्या आता है, 1। तो जो हमारे न्यू आउटपुट हुए वो क्या हो गया, 0 एंड 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम रीसेट पे हाई दे रहे हैं तो वो सिस्टम को रीसेट कर रहा है, मतलब आउटपुट वैल्यू जो Q से रिप्रेजेंट हो रही थी उसे 0 कर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, जब हमने सेट पे 0 दिया और रीसेट पे 0 दिया और सेट पे 1 दिया। अब लेट्स से हमारे यहाँ इनपुट वैल्यूज थी 1 और Q बार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए, जब हमने ये 0 दिया, सेट पे देखिए क्या इनपुट आएगा, 1 1 1 इनपुट होने पे क्या हो रहा है, आउटपुट 0 आ रहा है। और ये 0 जब हमारा यहाँ जाएगा तो 0 0 होने पे हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्या क्लियर हुई कि जब हमारा सेट हाइट देते हैं तो हमारा आउटपुट 1 हो जाता है। इसे हम दोबारा देखते हैं, अगर हमारा प्रीवियस स्टेट जो है वो 0 है Q की और Q बार की ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q दैट इज 1। सो अब अगर हम यहाँ पे R पे 0 दें और S पे 1 दें, अब यहाँ देखिए ये 0 यहाँ आएगा, तो जब 0 1 इस नॉर गेट को दोगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज आउटपुट विल बी 0। न्यू आउटपुट दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेट आउटपुट विल बी 0। Let's change the color. Next output will be 0. Fine. अब आप ये 0 इनपुट यहाँ जाएगा, तो आप इस नॉर गेट पे क्या इनपुट आया, 0 और 0। फॉर 0 0 नॉर गेट गिव्स अ 1, सो न्यू आउटपुट एट Q विल बी 1, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, हम जब भी सेट को हाई करते हैं तो हमारा आउटपुट हाई हो जाता है। तो यहाँ पे अभी देखा हमने, जब 0 1 हमने लिया था, रीसेट को हाई किया था, तो हमारा आउटपुट 0 होता है, चाहे प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो। उसके अलावा जब हम सेट को हाई करते हैं और रीसेट को लो करते हैं तो हमारा आउटपुट हाई हो जाता है, चाहे प्रीवियस स्टेट 1 हो या 0 हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेट स्टेट, इसे हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। अब हम लास्ट केस कंसिडर करते हैं। लेट्स से हमने इनपुट पे 1 और 1 दिया, रीसेट और सेट दोनों पे। अब हमारी प्रीवियस स्टेट हमने यहाँ पे 0 अज्यूम की, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी 1। अब जब हमने यहाँ 0 दिया, क्या वैल्यू हो गई इसके इनपुट पे, 1 और 0। ये नॉर गेट 1 और 0 पे क्या आउटपुट देगा, न्यू आउटपुट विल बी रिप्रेजेंटेड, लेट्स चेंज द कलर, न्यू आउटपुट इज 0। फाइन, almost same color, so new output is 0. Now this 0 will go over here. Now see, in this case for this NOR gate we are having inputs 1 and 0. Again for this it will create an output 0. But how is this possible? We know that Q and Q bar have to be complement. But यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए हमें दोनों में सेम वैल्यू मिल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, या ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है एसआर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग के लिए, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप या लैच, अभी हमने यहाँ क्लॉक नहीं लगाई है इसलिए हम लैच बोलेंगे, और फंक्शनिंग फ्लिप फ्लॉप और लैच की दोनों की सेम होती है, बस फ़र्क क्लॉक का होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, आई होप।
ये हमारा प्राइमरी फंक्शनिंग है एक एसआर लैच की नॉर गेट के थ्रू।